Hello students, my side Sankalp Gupta. Today we are going to discuss a very important topic and very interesting topic of the modern history. The name of the topic is Mahatma Gandhi, or we also know him by the name of Mohandas Karamchand Gandhi. He is a very famous personality, and as we know that very important for all the examinations, all the competitive examinations, because this topic is the bedrock of the modern history. So if we discuss today the topic, we will start first of all with the birth of Mahatma Gandhi. 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. Lawyer, politician, social activist, and a writer, who became the leader of the national movement against the British rule of India. As we know that Mahatma Gandhi was a lawyer in his profession as well as a social activist because he performed many important struggles. Like for example, if we talk about South Africa, where he fought against racism, if we talk about India, he led various movements like non-cooperation movement, Satyagraha like civil disobedience movement, Salt Satyagraha, Champaran Satyagraha. These are all the things we are going to discuss in the lecture in the further slides. Okay, Mahatma Gandhi once said, "Be the change you want to see in the world." This quote is very important for all the students because if you want to see the change in the world, okay, change must be you. You must be the change which must be seen by the whole world. So, as students, please remember this line and achieve your goals in your life. So, today we are going to start with the journey of Mahatma Gandhi. हम अच्छे से पढ़ेंगे इनकी पूरी फ्रीडम स्ट्रगल. ये लेक्चर इंग्लिश में और हिंदी में कंबाइंड होगा ताकि दोनों लैंग्वेजेस के लोगों को आसानी रहे. So, here we start with the next slide. Okay. So, as I said you that his journey started with the Satyagraha movement in the South Africa. In South Africa, he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, which he called Satyagraha. Actually, students, what was happening that if I talk you about what is racism, racism is the discrimination on the basis of your color. Like you know that some people are fair, some people are dark. So when the distinction is done, when the discrimination is done on the basis of the color of the person, then it is called the racism. In South Africa, he fought against this racist regime because the white men there really create many difficulties for the black men or the people of Indian origin who didn't have a fair color. But one thing you should notice here that कि जो उनका सत्याग्रह का तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था. क्या उन्होंने वायलेंस की? नो. क्या उन्होंने अपने हथियार उठाए थे? नो. The idea of Satyagraha was very simple. He emphasized the power of truth and need to search for the truth. So his basic two principles were truth and non-violence. He emphasized on the two basic principles of Satyagraha. These are the two principles of Satyagraha. And this is a direct question which can be asked from you. Really sorry students, here it has been written like Satyagrah. So please correct it, it is Satyagraha. Some typing mistake in the lecture. So it suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. इसका मतलब था कि अगर आपका कोई भी किसी के अगेंस्ट इनजस्टिस अगेंस्ट आप लड़ना चाहते हो और अगर आपका कॉज बिल्कुल ही सच है जिसके अंदर कोई झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, तो आपको वायलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी. Without seeking vengeance or being aggressive, a Satyagrahi could win the battle through non-violence.
This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. ओके, सो बिना वायलेंस के हम जो ऑपरेसर है उसके अगेंस्ट जीत प्राप्त कर सकते हैं. वी कैन विन अगेंस्ट द ऑपरेसर विद द नॉन वायलेंस. देयर इज नो नीड ऑफ वायलेंस. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through the use of violence. By the struggles, the truth was bound to ultimately triumph. तो जीत हमेशा किसकी होगी? सच. आप मूवीज में भी सुनते हैं काफी बारी ये जीत किसकी होती है? हमेशा जीत सच की होती है. तो ये किसका प्रिंसिपल है? महात्मा गांधी का. ओके, सो ये आपको सिर्फ इस स्लाइड में क्या दो चीजें याद रखनी है. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह. और गांधी जी जब भी किसी भी ऑपरेशन के अगेंस्ट लड़ते थे, किसी भी ऐसे रेसिस्ट रजीम के अगेंस्ट लड़ते थे साउथ अफ्रीका में, तो वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस दे वर द टूल्स ऑफ गांधी जी. सत्य और अहिंसा बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैंने समझा दिया. और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर. जिस दिन इनका बर्थ होता है उसी दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी कहते हैं. तो एग्जाम्स में कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कौन सा है. इट इज 2 अक्टूबर. Gandhi Peace Prize is given for the social, economic, political transformation through non-violence and other Gandhi methods. So these two things you should remember. These are the extra points which you can't find in any book. So now we are going to the next slide. So you can see the students. I am going to share a very beautiful story of Gandhi ji in front of you. What happened once he was traveling through a first class train. In this first class train he was traveling and he was thrown out of the train in the South Africa. Actually his fight for the against the racist regime started with this incident only. This incident was like a spark. This incident was a spark was created which gave him courage to fight against the racist regime in South Africa. Actually, students, I'm going to share one term with you. The name of the term is apartheid. Apartheid. This is one form of racism only. Apartheid is one of the tool of racism. In apartheid, what was happening there? White people, they were not allowing the black people to enter some of the premises. For example, they were not allowed to enter the beaches. They were not allowed to travel in the trains. So they were not allowed to enter the clubs where white men were there. So these sort of racism was creating a lot of distress among the lower sections or black people or the brown people also. If you can see this, Mahatma Gandhi, he was young at the time. The suit he is wearing is like a lawyer, as you know, he was a lawyer. Therefore, he is wearing the suit. Now, next we are going where I will tell you an example of apartheid. You can see the freedom from apartheid was one of the objective of these black men, and some of the white men also they were with them because all people are not same in the society. There are some good men also. So what was happening there? There were some boards where it was written for use by white men only. Really sorry, students. There were some for use by the white persons. These public premises and the amenities have been reserved for the exclusive use of white persons. You can see this. आज के ज़माने में ये कहीं पे लिखा हो तो दंगे फसाद हो जाए. इस सॉर्ट ऑफ रेसिज्म चल रही थी वहां पे, बहुत हाई लेवल की रेसिज्म थी. ओके, सो दिस वाज द अपार्थाइड रिजीम और इसके अगेंस्ट गांधी जी फाइट कर रहे थे. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द स्पेक्टेकुलर थिंग्स व्हिच वाज हैपनिंग against the racism or apartheid in South Africa. Students, now next we are going to the next slide. Okay, now what happened is now he returned to India from South Africa on
9 January 1915. So this date is very important, okay, because on this day Pravasi Bharatiya Divas is celebrated. So students, all the students who are going to give the competitive examinations, so it can come in the examination Pravasi Bharatiya Divas. ये कब होता है? 9th जनवरी 1915। और ये किस डे को कमेमोरेट करता है? जब गांधी जी इंडिया आए थे। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। So this is a direct question, students, and you must remember this date, 9th January 1950. So basically this day is celebrated everywhere to mark the contribution of the overseas Indian community in the development of India. जो भी हमारी इंडियन कम्युनिटी आज के टाइम पे ओवरसीज में काम कर रही है, जितना भी वो कंट्रीब्यूशन देते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं हमको, तो उनकी इस कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए गांधी जी के रिटर्न के डे को मिक्स करके एक दिन बनाया गया था, प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी, और 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। This is very important aspect, students. You must remember this. Okay. Now, students, now I'm going to discuss with you the 3 satyagrahas. Now, Gandhi ji came to India. He visited many places in India and he saw the local problems of Indians, what was happening at the time. There were some agricultural people who were facing difficulties due to the indigo cultivation, due to the exorbitant tax collections, due to the crop failures, famines. So he was like observing all these things. When he was traveling through our country, he took the problems of the laborers, he took the problems of the agriculturers, and many others. So in all the satyagrahas, the simple thing is he had the two principles. What were the two principles? As we have discussed in the first slide, truth and non-violence. Okay, truth and non-violence were the two basic principles of all the satyagrahas. And if we talk about the satyagrahas, important satyagrahas, first we will go for Champaran. This is given the first slide. Then we will go for the Kheda, and then we will go for Ahmedabad मिल स्ट्राइक। इनकी डेट्स आप याद कर लेना, ये 1916 में था, ये 1917 में था, और ये 1918 में था। सो स्टूडेंट्स, पहला हम जो सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा चंपारण सत्याग्रह। सो सबसे पहले आपको इसकी डेट याद होनी चाहिए। इट हैपेंड इन 1916। क्या होता है? ये चंपारण होता है एक सिटी। कहाँ पे है चंपारण? ये याद रख लेना स्टूडेंट्स आप, बिहार में। ये बिहार में जाते हैं टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है? चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट होता है बिहार में, जहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स होते हैं एंड पुअर फार्मर्स। उनको क्या फोर्स किया जाता है? इंडिगो कल्टीवेशन के लिए उनको फोर्स किया जाता है। टिपिकल कल्टीवेशन होती है इंडिगो। इंडिगो स्टूडेंट्स आपको मैं समझा दूं, जैसे नील, पता है ना आपको, जैसे कपड़ों को नील लगाया जाता है आजकल, जैसे घर में भी हम कपड़े धोते हैं तो नील को हम यूज करते हैं। बेसिकली नील को इंग्लिश में क्या हम कहते हैं? इंडिगो। तो इंडिगो की कल्टीवेशन होती थी, ठीक है। अभी इंडिगो की कल्टीवेशन, नो डाउट, it was good for the agriculture and for many people, like जो भी हमारे लेबरर्स थे उनको एडवांस दिया जाता था, पैसे लाइक उनको मिल जाते थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी इंडिगो की कल्टीवेशन के साथ, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या हुआ था कि जैसे इंडिगो थी ना, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती थी कि उनको फोर्स किया जाता था, फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि उनको ये मैक्सिमम जो उनकी लैंड है ना, उसके मैक्सिमम पोर्शन पे इस कल्टीवेशन को लगाया जाए, इस क्रॉप को लगाया जाए। और जो अदर फूड क्रॉप्स थे, कौन कौन से होते हैं फूड क्रॉप्स?
जैसे वीट, राइस, बार्ले, इनको लगाने से वो रोकते थे। अभी क्या है, ये सबसिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, वीट, राइस, बार्ले। पेट तो इसी से भरेगा ना, इंडिगो से तो नहीं भरेगा। अब जो हमारे इंडिगो प्लांटर्स थे, ठीक है, बेसिकली जो ब्रिटिशर्स के अंडर होते थे, वो फोर्स करते थे लेबरर्स को कि इंडिगो को लगाया जाए। अभी इंडिगो लगाने के एक और नुकसान था, वो क्या था कि क्रॉप्स के कारण क्या होता था कि हमारी जो सॉइल है ना, बहुत ज्यादा पोल्यूट होती थी, सॉइल पोल्यूशन। ओके, ये इसका सेकंड था। इसका एक और प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स, वो क्या था कि जो तीसरी प्रॉब्लम हम करेंगे इसके बारे में, कि क्या होता था कि दीज गुड्स वर बॉट फ्रॉम द फार्मर्स एट ए वेरी लो प्राइस। ठीक है, अभी ये जो इंडिगो के गुड्स थे ना, कैश क्रॉप्स थे, ये फार्मर से बहुत ही लो प्राइस में लिए जाते थे और इनको लगाने में बहुत खर्चा होता था। तो इस टाइप की बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रही थी फार्मर्स की डे बाय डे। सो क्या होता था, द गुड्स वर बॉट एट लो प्राइस। अब क्या होता था कि जो फार्मर्स हैं उनसे अपने खर्चे पूरे होते नहीं थे, खर्चा होता था इस क्रॉप को लगाने में, लेकिन उनको अच्छी उसकी वैल्यू नहीं मिलती थी, और ऊपर से इनको फोर्स किया जाता था कि यही लगाओ। एक प्रॉब्लम आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर। क्या था उसमें स्टूडेंट्स, कि होता क्या था कि एक जो फार्मर है ना, आप ये ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फार्मर्स को ना, ये इंडिगो प्लांटर्स होते थे, इंडिगो इंडिगो प्लांटर, स्टूडेंट आप कंफ्यूज मत होना। इंडिगो प्लांटर्स ब्रिटिशर्स के ही लोग, ब्रिटिशर्स के बंदे थे, जो कि ये विजिलेंस करते थे इंडिगो कल्टीवेशन पे। ये क्या करते थे कि इनको ना एडवांस दे देते। ओके, अब फार्मर क्या होता था, इसके पास पैसे की कमी होती थी, एडवांस ले लेता था। अब जब एडवांस ले लेता था ना, तो उसमें क्या होता था कि वो बाउंड हो जाता था कि उसको अब यही लगानी पड़ेगी। कई बार क्या होता था कि ऐसी सूटेबल कंडीशंस नहीं आती थी कि वो इंडिगो की कल्टीवेशन हो नहीं पाती, लेकिन उसको फिर से वही लगवानी पड़नी है। फूड क्रॉप्स लगाने के लिए उसके पास जगह नहीं होती थी, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन पे उसको क्या लगाना पड़ता था, इंडिगो कल्टीवेशन। सो इस कल्टीवेशन के कारण फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। सो इसके कारण सप्रेशन हो रही थी, लैंडलॉर्ड्स जो थे वहाँ के वो भी सप्रेस कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आ चुकी थी हमारे उस टाइम चंपारण में। चंपारण कहाँ पे स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई थी रिगार्डिंग द इंडिगो कल्टीवेशन। तो आपको स्टूडेंट इसमें बस ये याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह किस पर्पस के लिए था, अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो। सो स्टूडेंट्स, गांधी जी इस सत्याग्रह के अगेंस्ट लड़ते हैं नॉन वायलेंस, ट्रुथ के साथ, और काफ़ी हद तक इनकी हेल्प होती है, और ये जो ऑपरेशन है ख़त्म हो जाती है। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह विच यू मस्ट रिमेंबर for all the examinations, because direct question can come, which was the first satyagraha of Gandhi ji. It was Champaran Satyagraha, and what was it for? It was against the oppressive plantation system of indigo. I hope this is clear. Now we are going to the next topic, students. Now we are going to read about Kheda Satyagraha. Like we have done the Champaran Satyagraha, it was in 1916. Kheda Satyagraha happened in 1917. What happened was Gandhiji organized a satyagraha to support the peasants of the Kheda district of Gujarat. खेड़ा कहाँ का था डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का, जहाँ के हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। खेड़ा सत्याग्रह, he organized satyagraha to support the peasants of the Kheda district of Gujarat affected by the crop failure and the plague epidemic. The peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. स्टूडेंट्स, इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको पता ही है कि क्या होता था, तीन तरह के सिस्टम होते थे, आपने वो नेक्स्ट क्लासेस में करवाए जाएंगे। ठीक है, एक तो जमींदारी सिस्टम होता था, एक रियायतवारी सिस्टम होता था, एक तो मालवाड़ी सिस्टम होता था। ठीक है, अब तीनों सिस्टम्स में क्या होता था कि जो लेबरर्स होते थे ना, उनसे हद रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ऑपरेसिव मेजर्स के साथ, जिसके कारण जो लेबरर्स की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती थी। अभी क्या होता है 1917 में, एक क्रॉप फेलियर, एज यू सी दिस इमेज, पूरी की पूरी क्रॉप फेल हो चुकी है। अभी जब क्रॉप फेलियर हो चुकी है, व्हेन द क्रॉप हैज फेल्ड, हाउ द फार्मर्स आर गोइंग टू गिव सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू can't be taken from them. This is a simple fact. In the situation of COVID also, the government relaxed many things for the people. Like they were not taken the taxes for about 2 to 3 months. They were given the relaxation in the rate of interest and many other things were given by the government. But in Kheda Satyagraha in 19, what happened was after the crop failure also, the revenue collection was still going on. The oppressive measures was going on. उनके साथ बहुत ही बुरे सलूक किए जाते थे जिस रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद गांधी जी सत्याग्रह करते हैं, जिसके कारण उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है माफ की कर दी जाती है, और ये सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यू मस्ट रिमेंबर द खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए था? जब क्रॉप फेलियर होती है और रेवेन्यू कलेक्शन को फ्री करना था। Students, this is one of the very important satyagraha of Gandhiji. You must remember this. Okay. So this is one of the third important aspect of Gandhiji's struggle for the freedom struggle or against the oppressive measures of the Britishers. Now, this is called the Ahmedabad mill strike. What was happening in this, students? As you know that now mill strike has come. Now here the position will come of the laborers. Now you can see the laborers are sitting around Gandhiji. They are just leading the satyagraha. It happened in 1918. Ahmedabad is known. It's in Gujarat. Okay. So what was happening, students? Gandhi used satyagraha and hunger strike for the first time. So this is a very important aspect which you must remember. Question will come. First hunger strike. फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी की इंडिया में कब हुई थी? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। भूख हड़ताल पे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम गए थे गांधी जी 1918 में, याद रखना आप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ पुराने। बेसिकली क्या था? डिस्प्यूट था एक, किसमें? ओनर्स में और वर्कर्स में। एक कॉटन मिल थी अहमदाबाद में, उसमें वर्कर्स और वहां के ओनर्स में डिस्प्यूट था। अब क्या था कि जो ओनर्स थे ना, दे वांटेड टू विथड्रॉ द प्लेग बोनस टू द वर्कर्स while the workers were demanding a hike of 35% in the wages. अभी क्या हुआ था कि एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि वहां पे प्लेग आया था। अब प्लेग के बाद वर्कर्स को प्रॉमिस किया हुआ था कि आपको बोनस दिया जाएगा ओनर्स की तरफ से। ओके, तो उन्होंने क्या किया? वर्कर्स ने 35% हाइक मांगा अपनी सैलरीज में, बिकॉज सिचुएशन खराब थी। तो ऑब्वियसली हाइक सैलरीज में उनको चाहिए था अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि अब प्लेग आया तो खर्चे भी बढ़ चुके थे, प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है ना। तो ये स्ट्राइक कर रहे थे वर्कर्स, और ओनर्स ने मना कर दिया था देने से प्लेग बोनस। हाइक तो क्या करनी है, उन्होंने प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। ड्यूरिंग द पीसफुल स्ट्राइक लेड बाय द गांधी ही अंडरवेंट ए हंगर स्ट्राइक। अब गांधी जी क्या करते हैं? हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं वर्कर्स के साथ, और अहमदाबाद में स्ट्राइक वाज सक्सेसफुल एंड द वर्कर्स वर ग्रांटेड द वेज हाइक दे वांटेड। और क्या होता है? वेज हाइक को दे दिया जाता है। वेज हाइक इज गिवन। सो आप देख सकते हो ना स्टूडेंट्स, गांधी जी इन तीनों सत्याग्रह में एक मसीहा की तरह आते हैं। पहले चंपारण में जो प्रॉब्लम थी फार्मर्स की अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन, उसको सॉल्व किया। खेड़ा में क्रॉप फेलियर हुआ, रेवेन्यू माफ करवाया। ओके, फिर उसके बाद खेड़ा में आपने देख ही लिया, और अहमदाबाद में स्ट्राइक में वेज को हाइक दिलवाया। सो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री where the Gandhiji acted like a messiah and helped farmers, laborers, indentured laborers, artisans and all in their various aspects of life. Now we are going to discuss a very important thing of the modern history, that is the Royal Act 1990.
पहले स्टूडेंट्स मैं आपको समझाऊंगा कि जो रॉयल टेक्ट था, रॉयल टेक्ट भी कहते हैं, रॉयल टेक्ट कुछ भी कह सकते हैं। सर सिडनी रॉयल, यू कैन सी द पिक्चर, दिस वाज अ वेरी shrewd person, oppressive person, one of the British, Sir Sidney Royle, who passed this act. स्टूडेंट आपको इसको मैं राइट नाउ एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आपने जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में सुना होगा कई बारी, जो हमारे इंडिया में भी जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, उसके अंदर क्या होता है कि कई बारी हमको फील होता है कि इस बंदे ने कोई गलती की है या कुछ करने वाला है, तो उसको हम डिटेन कर सकते हैं। तो रॉयल एक्ट 1919 में कुछ ऐसे ही था। इन 1919 ही डिसाइडेड टू लॉन्च एन नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द एक्ट। अब गांधी जी ने क्या किया था, जो चीज़ गलत है ना उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, अब एक्ट था क्या वो मैं बता रहा हूँ। The act gave the government enormous powers to repress the political activities and allow the detention of the political prisoners without trial for 2 years. That means अगर सपोज करो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ काम कर रहा है, अगेंस्ट नहीं लाइक कोई राइट्स के लिए काम कर रहा है, और कोई प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, तो उनको क्या कर देंगे, डिटेन कर देंगे। डिटेन मीन्स उनको पकड़ लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, और उनको ट्रायल करने का मौका भी नहीं दीजिएगा। दैट मीन्स कोर्ट के सामने जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। कम से कम 2 साल के लिए वो डिटेन रहेंगे। तो आप खुद सोचो कि अगर आपकी राइट्स ऐसे वायलेट हो, for example, you know the fundamental right of Article 20, 21, 22. These are all the rights which like protects you from the illegal detention. Okay, तो उस टाइम ये राइट्स ले ली गई थी वापस। और 13 अप्रैल 1919 में आपको पता है कि जलियांवाला बाग एक इंसिडेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये इंसिडेंट होता है ना, तो अब गांधी जी को लगता है कि वायलेंस ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस इंसिडेंट में मैसाकेर हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो गांधी जी ने इस डर के मारे इसको मूवमेंट को वापस ले लिया था। कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट इन 18 अप्रैल 1919। तो आपको बस स्टूडेंट्स इतना याद होना चाहिए कि रॉयल एक्ट के अगेंस्ट भी इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। ठीक है, और रॉयल एक्ट क्या था ये आपको पता होना चाहिए। इट वॉज, ये आपको इसमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। यू शुड नोट दिस। स्टूडेंट्स ये पीपीटी आपने अच्छे से इसके नोट्स बना लेना। ये पीपीटी को डाउनलोड भी कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दी जाएगी। बट अगर आप इसके नोट्स बना लो साथ साथ, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ये जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छे से सेग्रीगेट करके, बहुत ही इसको फिल्टर करके रखा जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वैलिड है। पंजाब जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, ऑल द अदर एग्जामिनेशंस लाइक एनडीए, इन सब में ये काम आने वाला है। फ्रेंकली स्पीकिंग, this whole lecture on Mahatma Gandhi, these are the questions only, because most of the time topics of questions are these only. Questions are not coming outside from all the topics which I am going to discuss with you. So now we are going to see the next topic. So students, now this is the most important movement of Gandhiji. As you know that non-cooperation movement. We will do all the movements, like the modern history will be covered in a proper phased manner. But this now we are going to discuss what we are discussing with you is just about Gandhiji, the formation of Congress and all these things. We will be covering moderates, extremists, the lectures, follow-up lectures. But today we are going to discuss about only Mahatma Gandhi. So non-cooperation movement. Okay, 1920. एल कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920। क्या होता है स्टूडेंट्स, एक कैलकटा सेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसकी डेट याद रख लेना। कैलकटा सेशन कहाँ पे हुआ था, किसका हुआ है बेसिकली, कैलकटा सेशन किसका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। ओके, 1920 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, कैलकटा, ये तो ऑब्वियस। क्या हुआ था, ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स of the need to start a non-cooperation movement in the support of खिलाफत as well as स्वराज। अभी स्टूडेंट्स आपको मैं छोटी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ क्या हुआ था। दो चीजें हुई थी। ओके, पहले तो आपको पता ही है कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था।
मैसेकेर। इसमें आपको पता ही है जनरल डायर उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी बिना कोई वार्निंग दी, और कितने सारे हज़ारों 2000 लोग को पता है जलियांवाला बाग अमृतसर में वहाँ पे मौत के कुएं में छलांग मार दी थी, कितनों को बुलेट्स लगी थी। आई थिंक सब लोग वहाँ पे गए हुए हैं, एवरीथिंग एवरीवन हैज विजिटेड दैट प्लेस, यू नो द हिस्ट्री अबाउट दैट। We'll do the Jallianwala Bagh massacre in the follow-up lectures. What was the reason the people have gathered there? Basically, there were two people. Like I think he was Doctor. Um I'm going to give the names of the doctors in the further lectures. So there were two people इनकी arrest हो चुकी थी. I think Professor Kichlu and I'm not remembering the another name. So उनकी अरेस्ट हो चुकी थी, इलीगल डिटेन हो चुके थे वो, और उनको छुड़ाने के लिए वहाँ पे गैदरिंग हुई थी, सभा हुई थी, और डे क्या था? वैसाखी का। ठीक है, 13 अप्रैल था, वैसाखी डे था, और उनको छुड़ाने के लिए वहाँ पे लोग गैदर होते हैं। ठीक है, और जनरल डायर्स होते हैं वो गोलियां चलवा देते हैं वहाँ पे। अभी क्या होता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। ठीक है, साथ साथ में एक प्रॉब्लम और चल रही थी, खिलाफत इशू। खिलाफत इशू खिलाफत इशू हम डिटेल में करेंगे द फर्दर लेक्चर्स, लेकिन आपको मैं जितना बता दूं कि ये जो खिलाफत इशू है ना, ये रिलेटेड था मुस्लिम्स के साथ। था क्या कि एक मुस्लिम्स के ना जो कैलिफेट थे, ओके, मुस्लिम्स के थे कैलिफेट, ओके, इनको क्या हुआ था, डीथ्रोन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ओके, कैलिफेट को क्या कर दिया था, डीथ्रोन कर दिया था। जब इनको डीथ्रोन कर दिया, मुस्लिम्स में एजिटेशन होगी, दे वर गोइंग अगेंस्ट दिस इशू। और क्या होता है, इस इशू को गांधी जी यूज करते हैं। गांधी जी अपने साथ खिलाफत इशू को यूज करके, जलियांवाला बाग मैसेकर को यूज करके, इन सारी प्रॉब्लम्स को मिलाते हैं स्वराज के साथ। स्वराज मीन्स अपना राज, ओके, और क्या लॉन्च कर देते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब होती है, 1920। एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन 1920 वाज अडॉप्टेड। बेसिकली क्या हुआ था, कैलकाटा सेशन में इन्होंने इसके लिए बात की थी, लेकिन नागपुर सेशन में इसको क्या किया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। तो बेसिकली कब हुई अडॉप्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एट नागपुर सेशन 1920। In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement after the चौरी चौरा इंसिडेंट। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा कि चौरा चौरी इंसिडेंट क्या था, ये विड्रॉ क्यों किए इन्होंने। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, चौरी चौरा इंसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। हुआ क्या था कि February 4 वॉलंटियर्स जो थे ना, वो टाउन में इकट्ठे होते हैं, एक मीटिंग होती है, और क्या होता है, लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और उसको ना पिकेट करने की सोचते हैं। वहाँ का एक बाजार होता है, उस बाजार को लूटने की सोचते हैं। द पुलिस फायर्ड इन द क्राउड किलिंग, अब पुलिस ने फायर की, और जब वो क्राउड में से कुछ लोग मरे तो रिटेलिएशन में किया क्राउड ने प्रोसीड करके पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। क्या किया था वहाँ पे मॉब ने, कुछ 22 लोगों का ग्रुप था जिन्होंने मिलकर क्या किया था, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और उसके कारण क्या हुआ था कि पुलिसमैन जो थे, जब वो एस्केप करने की कोशिश करने लगे, ठीक है, कुछ तो ट्राई कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ था, उनकी डेथ हो गई, और बहुत ज़्यादा पुलिस प्रॉपर्टी को, वेपन्स को डिस्ट्रक्शन होती है। सो बेसिकली क्या आप देख रहे हो कि वहाँ के जो लोग हैं, जो मूवमेंट में जुड़े हुए थे, उन्होंने क्या किया था, नॉन वायलेंस से हटके वायलेंस की तरफ जाना शुरू कर दिया। और आपको पता है गांधी जी के टू प्रिंसिपल्स क्या हैं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, तो जब वो गांधी जी को पता लगता है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जो प्रचारक हैं, उन्होंने वायलेंस की है, इस पुलिस स्टेशन को आग लगाई है, तो वो ये विड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज दे वर अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। और जब ये इसको विड्रॉ करते हैं तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको बस इतना समझना है स्टूडेंट इंसिडेंट में कि जो चौरा चौरी इंसिडेंट था, ओके, तो ये बेसिकली क्या था कि जब यहाँ पे वॉलंटियर्स आते हैं, आग लगा देते हैं पुलिस स्टेशन को, मतलब वायलेंस क्रिएट करते हैं, और चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड होता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था, दैट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट। तो एक चौरी चौरी मेमोरियल भी बना हुआ है हमारे इंडिया में,
जहाँ पे लोग शहीद हुए थे, मरे थे, बिकॉज पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले भी मरे थे, लोगों को भी गोलियां बजी थी. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट मेमोरियल. आई एम गोइंग टू शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द memorial of Chauri Chora. It is in UP. I think it is in Gorakhpur district. Just Gorakhpur. It is in Gorakhpur district. कहाँ पे है? यूपी में. ओके. तो बेसिकली क्या था कि महात्मा गांधी का रिएक्शन आपको पता बता ही दी. He condemned the crime of the policeman killing. The volunteer groups in the nearby villages were disbanded, and Chauri Chara support fund was also set up to demonstrate with genuine sympathy and seek atonement. Gandhiji decided to stop the non-cooperation movement, which he saw as having been tainted by the unforgivable violence. He bent to the Congress Working Committee to his will, and on 12 February 1922, the Satyagraha movement was formally suspended. 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है. कौन से इंसिडेंट के कारण? चौरा चौरी. कौन सा? चौरा चौरी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ महात्मा गांधी जी लाइफ. तो वो अगेंस्ट थे वायलेंस के. उन्होंने एक भी इंसिडेंट अगर नॉन वायलेंस का देखा तो उन्होंने सस्पेंड कर दी नॉन कॉपरेशन. और तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इनका इस सस्पेंशन के बाद. लेकिन स्टूडेंट्स आई थिंक आइडियल्स पे रहना चाहिए इंसान को. ओके. तो अगर उनको था कि दिस इज अगेंस्ट गोइंग देयर प्रिंसिपल्स, बिकॉज वायलेंस के साथ कुछ भी हासिल नहीं होता आज के टाइम पे भी. सो दिस वाज द वे ऑफ देयर लाइफ. दिस वाज द वे ही फॉट सत्याग्रह एंड ऑल्सो यू नो दैट gave us the freedom with all these principles only. Okay, so this was the today's lecture, students. I hope so you enjoyed my lecture. The further life of Mahatma Gandhi is going to come on the in the next lecture, where we'll discuss about the salt satyagraha and civil disobedience movement of Mahatma Gandhi. Okay, and then the Quit India movement. Two moments are going to come in the further lectures, and the whole lecture on the Mahatma Gandhi will be finished. एंड आई थिंक ये वाले टॉपिक्स अच्छे से कर लेना. इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे जो भी आएंगे आपको महात्मा गांधी जी के रिलेटेड. इससे बाहर नहीं आने वाले. दिस इज माई गारंटी फ्रॉम द एजुकेशन वर्ल्ड. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर. दिस इज संकल्प गुप्ता. Thanks for watching my lecture. If you like my lecture, please subscribe, like, share and comment. And please don't forget to press the bell icon, because all the notifications will be provided to you as given the latest updates. Thank you.